شام ہوتی ہے کسی بھی ٹیلی ویژن چینل پر لگائیں تو مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما ہمیں ڈیفینڈ کرتے اپنی اپنی پارٹی کو نظر آتے ہیں. اس میں ایک چہرہ ایسا جو ہمیں تقریباً ہر چینل پر نظر آتا ہے اور دبنگ قسم کی ڈیفینسو میکنزم ان کا ایکٹیویٹ ہوا ہوتا ہے. ہی از ویری ووکل ماشاءاللہ, اور ہم نے ان کو دیکھا ہے فرام گراس روٹ لیول ٹو دی MNA کی سیٹ پہنچنا ماشاءاللہ. اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے. سوال آج ہم یہ بھی کریں گے کہ صبح دوپہر شام سیاست سیاست سیاست, کیا گھر میں بھی ہوتی ہے سیاست اور کیا تھکتے نہیں ہیں؟ یہ ان سے پوچھیں گے. جب آپ نے گھر کی بات کی تو ان کی اہلیہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, سائمہ حسن صاحبہ, اور ان سے ذرا پوچھیں گے کہ گھر میں کیسے ہیں دبنگ سیاستدان. علی نواز امان صاحب کی ہم بات کریں جناب. آج ہم پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں مسٹر اینڈ مسز علی نواز امان. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی. صبح اٹھنے میں کوئی دقت کوئی پریشانی؟ نہیں 18 سال نہیں ہوئی؟ یہ نہیں, PDM کی گورنمنٹ نے ہمیں یوز ٹو کر دیا ہے. اتنے میرے پاس کوئی 54 پرچے. اچھا, تو میری صبح گاڑی میں سٹارٹ ہوتی ہے تو کبھی ہائی کورٹ پہنچ جاتی ہے یا ڈسٹرکٹ کورٹ پہنچ جاتی ہے یا ATA کورٹ پہنچ جاتی ہے. تو اب یوز ٹو ہو گئے اور عدالتیں صبح 8:30 لگ جاتی ہیں. تو اتنی پیشیاں ہر ڈیلی بیسس پہ 2 سے 3 کیسز میں پیشیاں. کتنے کیسز ویلڈ ہیں اس میں سے؟ 54 میں سے کتنے ویلڈ ہیں؟ سب ویلڈ ان دا سینس کہ ہے تو سارے پولیٹیسائزڈ. اچھا, مطلب ہے یہ کہ آپ نے کار سرکار میں مداخلت کر دی, آپ طریقے انصاف میں ہیں تو آپ غدار ہیں. اگر آپ عمران خان کو فالو کرتے ہیں تو آپ پہ بغاوت کا پرچہ ہو سکتا ہے, اور اگر آپ اسلام آباد میں سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کار سرکار میں مداخلت. یہ ہوتا رہتا ہے. ویسے علی بھائی کل ہم نے دیکھا کہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے, پولیس گئی وہاں پہ خان صاحب گرفتار کرنے. خواہش ہے PMLN کی خان صاحب گرفتاری دے دیں, تو خواہش پوری کیوں نہیں کرتے خان صاحب؟ دیکھیں تھوڑا سا انالیسس کرنا پڑے گا اس چیز کو. آپ کے اوپر آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس وقت پاکستان کے, پوری دنیا کے لوگ کیا سمجھتے ہیں. آپ بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں, آپ خان صاحب کی پالیسیز کے بارے میں کرٹیکل ہو سکتے ہیں, ان سے اختلاف رکھ سکتے ہیں, بٹ آپ خان صاحب کے جو یہ میٹرز ہیں کہ کوئی خان صاحب کو فائنینشلی کرپٹ نہیں سمجھتا. ان کی جو انٹیگریٹی ہے پوری دنیا میں اس کو مانا جاتا ہے. اب خان صاحب کے اوپر پرچے ہیں کیا؟ اگر ہونا کہ آپ نے مطلب حدیبیہ پیپر ملز میں آپ کا شیئر تھا, آپ کا رمضان شوگر ملز میں کیس تھا, پاناما میں آپ کا نام آیا تھا, آپ کا انگلینڈ کے اندر, میری انگلینڈ تو کیا پاکستان میں جائیداد نہیں ہے عمران خان صاحب نے کہا ہو اور بعد میں نکل آئی ہو, اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں. عمران خان صاحب پہ وہ سارے پرچے ہیں جو مطلب عام پولیٹیکل لوگوں کے اوپر پرچے ہیں. مطلب وہی بغاوت کا سیڈیشن ہے اس کے اندر آپ غدار ہیں, اس کے اندر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں. آپ گرفتار ہو سکتے ہیں, کتنے چانسز ہیں؟ کیونکہ اچھا کل بھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے تو انسپیکٹر صاحب جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہم صرف نوٹس دینے آئے, لیکن جب IG صاحب سے نے تمام میڈیا چینل سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ گرفتاری کے وارنٹ ہیں اور گرفتاری کے لیے ہی ہماری ٹیم وہاں پر گئی ہے کہ ان کو گرفتار کر کے واپس اسلام آباد لایا جائے گا. تو ابھی کتنے چانسز ہیں کہ وہ گرفتار ہوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, ایک آپ نے بتایا SHO صاحب, وہ کہہ رہے ہیں ہم نوٹس دینے ہیں. IG صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو لازمی گرفتار کرنا ہے, اور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں گورنمنٹ کی کوئی انٹینشن نہیں. اب مجھے بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. رانا صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر انہیں گرفتار کرنا چاہیں تو اتنا مشکل کام نہیں ہے. یہ تو کہہ رہا ہوں, کل جو گئے ہیں اب 3 ورژنز آ گئے, ٹھیک ہے, کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہماری کوئی انٹینشن نہیں, اگر پکڑنا ہوتا تو ہائی کورٹ میں پکڑ لیتے. SHO صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف نوٹس سرو کرنے آئے تھے. IG صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے گرفتار کرنا ہے. تو متضاد بیانات ہیں. بیسیکلی nobody knows, جو رول پلے کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں. ان کی ایک انا کی تسکین ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم نے گرفتار کرنا ہے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر یہ خان صاحب کو گرفتار کر کے اگر دوبارہ یہ جو مہنگائی کا بم پھڑا ہے عوام پہ, اگر یہ واپس ریورس ہو سکتی تو کر لیں, کوئی ایشو نہیں. خان صاحب پہلے بھی قربانیاں دیتے ہیں, یہ بھی دے دیں گے. بٹ اگر آپ ان کیسز کے اندر کرنا چاہتے ہیں, اور جہاں خان صاحب ہر جگہ پیش ہو رہے ہیں, اب دیکھیں توہین مذہب کا الزام لگایا, ان کے اوپر اس کے اوپر FIRs کٹی ہیں, توہین IMF کا لگ گیا, اب تو آج کل تو توہین بلاول بھی ہو رہی ہے ہر جگہ. خیر اس کا شیخ رشید پہ کٹا تھا, آپ کے سامنے ہے عمران خان صاحب کے اوپر جب کچھ بس نہیں چلا تو گولیاں بھی مار کے دیکھ لی ہیں. آپ دیکھیں پولیٹیکل لوگ گراؤنڈ کے اوپر مقابلہ کرتے ہیں, آپ گراؤنڈ کے اوپر مقابلہ کریں. آپ سمجھتے تھے ہماری گورنمنٹ ٹھیک نہیں چل رہی ہے, آپ نے ہمیں ریپلیس کر دیا. واٹ ایور سینیریوز, کیونکہ مارننگ شو اس میں زیادہ آپ کھلاتی کیا ان کو جو اتنے زیادہ یہ ووکل ہو جاتے ہیں, بالکل قابو کوئی نہیں کر سکتا پھر ان کو. کیا کھلاتی ہیں؟ جوش, اندر کا جذبہ. اچھا, آپ کچھ نہیں کھلاتی؟ نہیں, جو روٹین ہے ماشاءاللہ اچھا مطلب پسند کرتے ہیں, کھانا پسند کرتے ہیں. کیا پسند ہے زیادہ ان کو؟ زیادہ
दाल चावल दाल चावल तो मतलब देसी खाना टोटल घर का अच्छा, घर में कैसे हैं? यहाँ पर तो हम शुएब ने जिस तरह बताया शुरू में कि दबंग हमें बोलते नजर आए, वोकल, घर में आवाज निकलती है? वैसे बेगम के सामने निकलती, किसी शौहर की नहीं है। नहीं, घर में आप कोशिश करते हैं कि इतनी जरूरत ना पड़े कि इतनी ज्यादा आवाज निकलने की। कैसे बेलन होता है उसके लिए या चिमटा? नहीं, नॉट एट ऑल। लेकिन ऑलरेडी किसी से नहीं। आप भी किसी बात से नहीं डरते? अरे नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा, डरना कोशिश की है कभी आपने इनको डराने की, धमकाने की, प्रेशराइज करने की? अच्छे आदमी हैं, मान जाते हैं, इसलिए जरूरत नहीं महसूस होती। कोई ऐसी बात जो ना मानी हो इन्होंने? अली ने ना मानी हो? 18 साल में अली साहब ने कोई एक बात जो ना मानी हो? अगर आप कहते कोई एक बात भी नहीं है तो हम कहेंगे ऐसा शौहर ये मैं भी बहुत ज्यादा शौहर कितना लंबा, मैं भी बहुत ज्यादा फरमाइशी प्रोग्राम नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन जब भी कहा है, मौका है आपको आज बताएं कि जो चीज ना मानी हो उन्होंने शायद मान ले आज। मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ हो कि अली ने ना माना हो। हाँ, मान जाते हैं। अच्छा, वैसे 18 साल माशाल्लाह। तो मुलाकात कहाँ हुई थी? पहली मुलाकात अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? जरा हमें ये तो बताएं। अरे नहीं, 101%। शादी के दिन ही देखा एक दूसरे को? यस। अच्छा, शादी के दिन देखा, जैसे पहले जमाने में होता था कि शादी? हाँ, पहले जमाने में ले गए, पुराने ना करें यार। पहले 18 साल, लेकिन वो एक दौर होता था ना जिसमें देखे बगैर शादी वाले दिन हमारे पेरेंट्स का था इनफैक्ट। अच्छा। लेकिन हमारा भी बस ऐसी अरेंज मैरिज। तो फिर क्या लगा कि फैसला, दोनों से सवाल है कि पेरेंट्स का फैसला ठीक था? ऑलवेज देखें, आपने पहले भी आप जो से बात कर रही थी, आप डिस्कशन को लेके जाएं, उसे लॉजिकल एंडिंग पे लेके जाएं। अगर आप लॉजिकल हैं तो लड़ाई नहीं होगी। ओके। अगर लॉजिकल नहीं है और आप कोई चीज पे कोई भी इंसिस्ट, दोनों पार्टनर्स में से कोई भी इंसिस्ट करता है, वो लड़ाई की तरफ चली जाएगी चीज। अब मोस्टली मैं अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ कि आप मुझसे डिस्कस करो। ओके। और कोई चीज मुझे कह लो और मुझे लॉजिकली इस चीज पे ले आओ कि तुम ठीक करना चाहते हो तो हो जाएगी। हो जाएगी। यही चीज मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाई। ठीक है, आप जिंदगी में जो भी करना चाहते हैं उसके पीछे कोई ना कोई आप सोचते हैं, उसके पीछे लॉजिक होती है और उसके पीछे आपके थोड़ा पैशन होता है। ठीक है, जो भी आप जिंदगी में, तो हमेशा इसलिए चीजें स्मूथ चलती हैं जिंदगी के अंदर। सेकेंडली, जो आपने दूसरी बात की है कि मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम है। मैं अपनी अम्मी के साथ रहता हूँ। अम्मी मेरे साथ नहीं रहती, मैं अम्मी के साथ। खूबसूरत बात तो वही है ना। तो जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि आपने अपना घर भी चलाना है, आपकी बाहर की भी एक जिंदगी है, आपने वो भी चलानी है। तो जो बड़ों के फैसले होते हैं मोस्टली वो अच्छे होते हैं। बेशक ऐसे ही। फिर क्योंकि हमारे एक कल्चर भी है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के साथ रहे हैं, अलाइड इंडिया में रहे हैं, तो यहाँ औरतों का जो है वो जरा आपको प्रेशर बर्दाश्त भी करना पड़ता है और जरा आपको उनका उठाना भी पड़ता है। तो माय मदर, यानी यही कुलिया है आपका। यानी अली साहब, अगर सवाल करें 18 साल कामयाब अज़दवाजी जिंदगी का नुस्खा क्या है, मर्दों को जरा बताएं तो सही। इट ऑल डिपेंड्स कि हर घर का माहौल डिफरेंट होता है, बट सिंपल है कि लॉजिकल डिस्कशन बेस्ड अपनी जिंदगी कर लें। ठीक है जी। अगर आप लॉजिकल होंगे तो कोई, देखिए जब आप लॉजिकल बात कर देते हैं, वो कहते हैं ना, आपको कई जगह ना होती अगर एक फोरम पे बैठ के आप उसकी कोई लॉजिकल बहस कर लेते। ठीक है जी, लॉजिकल होना चाहिए मामला, तो फिर चीजें ठीक और घर के अंदर भी अगर जंग से बचना चाहते हैं तो T20 आप ब्रेक में ही करते हैं। तो सबसे पहले जी साइमा आपसे स्टार्ट करते हैं। तो आप तैयार है? जितना छोटा मेरा सवाल उतना छोटा ही आपका जवाब होगा। ठीक है, T20 रैपिड फायर। चलें जी, पहली नजर में इन्हें देखकर क्या ख्याल आया था? He is a nice man. अली नवाज की ऐसी कोई आदत जिसे आप चाहकर भी बदल नहीं सकती? ओह, काफी सारी। कोई एक काफी सारी है। छोटा जवाब। कोई एक, अगला सवाल, कोई एक आदत। कोई एक आदत। अच्छा, कौन सी ऐसी बात है जो अच्छी लगती है? वो भी बहुत सारी है। अच्छा, कोई एक नहीं, सबसे अच्छी। वेरी ऑनेस्ट मैन। अच्छा, इनकी मसरूफियत से कभी परेशानी होती है? बहुत कम। पॉलिटिशियंस अमीर होते होंगे। शॉपिंग में कंजूसी करते? नो,
रोकना पड़ता है नहीं, इनको। आपको शॉपिंग करवाने में कंजूसी करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, Not at all। तो फिर आपने ऐसा क्योंकि इनको रोकना पड़ता है मतलब मैं स्टॉप हो जाऊं उन्होंने कभी नहीं मुझे फजूल खर्च है इसका मतलब, ये कहना चाह रही है? नहीं, जहाँ पे इनको पता है कि हाँ थोड़ा सा कभी मतलब खर्चने में धड़क है। ओके, अच्छा, आपकी तारीफ में कभी गाना गाया? ये अली नवाज जवान है। अच्छा, Is it possible? गाने नहीं गाते? कभी फरमाइश नहीं किया आपने? नहीं, ये मतलब रिजल्ट से भी तो खौफ आता है ना। मेरा ख्याल हो जाए जी, भाभी को खौफ आता है। कभी नहीं गाया अली भाई आपने गाना, प्लीज, उनकी ख्वाहिश है। आते ही नहीं कोई गाना, कुछ भी। देखिए वैसे मार्च का महीना है, वो मार्च में निकल जाएंगे खवातीन पे। मैंने गाने सुने भी कोई याद ही नहीं होगा मैंने कब सुना। छोटा सा गाना कोई गाना, कोई शेर। अच्छा, कोई शेर सुना। मजाक नहीं कर रहा, आप लोग वाकई समझ। शेर भी नहीं है ऐसे। मैं 2003 में पॉलिटिक्स में आया, ठीक है, और उसके बाद मैं आया हूँ तहरीक इंसाफ में। किसी काबिल नहीं छोड़ा। कितने अच्छे प्यारे तराने भी तो हैं। ओ भाई, यू हैव टू वर्क लाइक एनीथिंग इफ यू आर इन तहरीक इंसाफ। ओके, अच्छा, तो आप ये सोच, अब शुरू से एक बात ये भी है कि शुरू से मुझे ये गाने और ये इतना खास कभी भी अट्रैक्टिव नहीं रहा। तो रोमांटिक नहीं होते? ये तो ये बता सकती है। आप बताइए। कुछ खास नहीं। तो मुझे लगता है बहुत डिमांडिंग है। कैसे इतनी डिमांड्स पूरी करते हैं आप? लाइफ जब इस सर्कल इतना है कि इसमें मैच करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब बारी है आपकी रैपिड फायर की। जितना छोटा सवाल उतना छोटा जवाब। देखिए, आपने उससे पहले ब्रेक में बात करते आपने कहा भी कि इख्तलाफ किसी से हो सकता है, आपके साथी से, दोस्त से, किसी से भी हो सकता है, होना चाहिए। तो इसलिए बड़ा क्विक सा क्वेश्चन है, इमरान खान साहब का कोई ऐसा फैसला जिससे आपको इख्तलाफ हो, वो क्या था? बहुत सारे हैं, मतलब इसमें ये तो नहीं है, कई जगह हम समझते हैं, जैसे 2013 में कई जगह हम समझते थे ये जो टिकट एलोकेशंस हैं या इसमें कोई ना कोई बेहतरी आनी चाहिए। आखिरी ऐसा फैसला इमरान खान साहब का जिससे आपको इख्तलाफ हो, वो क्या था? समवेयर वी फील लाइक असेंबली से छोड़ना। असेंबलीज को मैं ये समझता था उस वक्त, असेंबली छोड़नी नहीं चाहिए, इसका बाइकआउट कर देना चाहिए। ठीक है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अगर होती है, पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? सर देखें, अभी जो लेटेस्ट IRS पोल्स और गैलप के पोल्स आए हैं, अगर आपने देखे हो, इस वक्त जो तहरीक इंसाफ यही खड़ी हुई है और बाकी पार्टी से हैं, आप जो करेंगे ना इस वक्त, आप इमरान खान को सिर्फ एक तरह खत्म कर सकते हैं, और वो ये है कि यू हैव टू डिलीवर। आप डिलीवर कर दें पाकिस्तान की आवाम। रैपिड T20 सर। जल्दी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पार्टी को फायदा देगी या नुकसान? सवाल वही है। और हाई हो जाएगा, ग्राफ और हाई हो जाएगा। फायदा राना सनाउल्लाह साहब को जब टेलीविजन पर देखते हैं तो पहला ख्याल दिल में क्या आता है? वो देखें भाभी कैसे हंसी मुझे है। वो याद आ जाते हैं, वो टॉम एंड जेरी। ओके, मरियम नवाज साहब की पर्सनालिटी पर एक जुमला। इनसिक्योर फ्रॉम व्हाट? छोटा सा सवाल था जी, मैंने अगला सवाल किया ना, मैंने अगला सवाल किया आपसे। रैपिड फायर में नहीं था। नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आते? इनसिक्योर कौन होता है? जिसके अंदर आप अपने आप को देखें, कोई पैदा होते ही लीडर नहीं होता, ठीक है, आप ग्रूम होते हैं, आपको लर्न करना पड़ता है। ठीक है, फिर आप देखिए, आप T20 से निकल आए, आप भी T20 से निकल आए, मैं वापस लेकर आऊंगा। इतनी लंबी बात है, तो इनसिक्योरिटी नजर आती है। ठीक है, शेख रशीद साहब की पार्टी में अलायंस पार्टी को फायदा दिया, नुकसान दिया? रीजनल पार्टी ने कोई नुकसान नहीं दिया। कोई नुकसान नहीं दिया। इलेक्टेबल्स की सियासत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा दिया या नुकसान दिया? व्हाट आई फील लाइक, नुकसान दिया। नुकसान दिया। इमरान खान के अलावा कोई ऐसा पॉलिटिशियन PTI में जिसको आपको लगता है देखकर के इमरान खान साहब के अलावा अगर कोई पार्टी को मुनज़्ज़म कर सकता है, चला सकता है, पाकिस्तान को लीड कर सकता है, वो कौन होगा? असद उमर साहब है। इमरान खान साहब से मिलने जब जाते हैं, तवाज़ो किस चीज से होती है? मैं एक वाकया सुना देता हूं, चलिए आपको वाकया सुना। हम चले गए 2000, ये तक वो अच्छा मजेदार सा वाकया सुन रहे। 2008-9 नहीं 2014 या इलेक्शंस हो गए थे, खान साहब गिरे हुए थे, तो असद भाई की टिकट का फैसला होना था, खान साहब ने बुलाया बनी गाला, तो वो मैंगो शेक लेके आ गया, तो मैंने उसको बुला लिया वापस। हम 4 बंदे बैठे हुए थे, मैं कहा भाईजान खैरियत है? क्या हो गया? मैं कहा खैरियत है भाईजान, यहाँ पानी नहीं मिलता, तुम यहाँ मैंगो शेक ले आए हो। तो कहते हैं भाईजान वो खान साहब को किसी ने आम गिफ्ट किए थे,
तो वो खत्म नहीं हो रहे थे, तो हमने उस एक आम के शेक के अलावा कभी तवाज़ुन नहीं हुई। मैं आपको बता रही लाइक दिस, चाय भी नहीं पूछते, चाय भी नहीं पूछते, चाय तो मिल जाती, अब मिल जाती है वरना तो मुश्किल काम है। पसंदीदा हीरोइन कौन सी है आपकी? पसंदीदा पुरानी हो गई, अब तो एक देविया भारती होती थी, बड़ी जबरदस्त। अच्छा हाँ, वो अभी आजकल में कौन पसंद है? आजकल नाम क्या नाम है यार उसका नाम याद। वो तो तैयार बैठे तो नाम ले सही जरा। करीना कपूर। ये आपको मालूम ठीक है। अच्छा, कोई मसला नहीं। पुरानी हो बहुत गई। ज्यादा अली तो आजकल इस तरह एंटरटेनमेंट्स में तो नहीं है, Right. तो इसलिए फिर वो जो पुराने हैं, जो थोड़ा सा टाइम पीछे है, उसके हिसाब से। ठीक है, कभी ऐसा हुआ कि अब जरा पॉलिटिशियन है, टेलीविजन चैनल्स पे नजर आ रहे होते हैं, आपने कहा कि आज ये करंट अफेयर का चैनल नहीं, आज मैंने ड्रामा देखना है, नो 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 नो, कभी ऐसा नहीं हुआ? आपको शौक अली नहीं का है? शो मैं देखती हूँ। आप अगर कहीं बहुत ज्यादा बच्चों में बिजी नहीं हूँ तो डेफिनेटली शो देखती हैं, फिर और थोड़ा शो बहुत पे discuss- फीडबैक क्या देती हैं? जो भी हो, अच्छा है, आज बहुत अच्छा था, Okay. कभी कभी तो उसी टाइम दे देती हूँ, ओके, और कभी कभी वो सिर्फ वो कंटेंट पे होता है, कभी कभी ड्रेसिंग पे भी कमेंट दे देती नहीं हैं? नहीं, ड्रेसिंग मैंने भेजा है भाई। ओह, तेरी तैयारी आपकी तरफ से होती है। ब्लैक ही ज्यादा पहनते हैं ज्यादा पसंद है, अच्छा क्योंकि नजर हमें ब्लैक में ज्यादा हाँ आता है। ज्यादा पसंद है, फेवरेट कलर। जबरदस्त। आपका अपना फेवरेट कलर क्या है मेरा जिसमें आप अली को देखना चाहेंगी ब्लैक के अलावा? और वो मुझे कहेंगे light नहीं, नहीं बताइएगा। मुझे लाइट कलर पसंद है। और वो नहीं मानते आपकी बात? ये नहीं मानते ही अब नहीं आपकी थोड़ा बात? बहुत तो है, वो लाइट से आ गए हैं, Okay. तो पहले उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं था। बात मान Black लेते हैं से अब। हाँ। आखिरी कॉल किस पॉलिटिशियन को आपने की और किसकी आई? रोज पता नहीं कितनों की। नहीं, लास्ट कॉल अभी सुबह में भी। सुबह तो अभी नहीं, जितनी जगह सुबह बुलाया, अभी तो वकीलों से बात अच्छा, कल शाम में, कल का दिन भी हम देख रहे थे मेरे ख्याल है कितना। आखिरी मेरी शायद मुराद से या असद भाई से। ओके, ऐसी कौन सी कॉल है भाभी जो इनको आती है और बड़ी लंबी होती है और आप कहते हैं इतनी लंबी कॉल अब आ गई है ना, अब बस गया? वो कौन सा पॉलिटिशियन है जो लंबी कॉल करता है अली भाई को? मेरा नहीं ख्याल, कोई लंबी कॉल नहीं करता? बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती। अच्छा। थोड़ी सी छोटी ही होती हैं, टू द पॉइंट बात होती है। वो ऑलवेज इतना बिजी होते हैं स्केड्यूल में, और दे आर इनटू दैट सिचुएशन ऑल द टाइम, तो फिर वो उनको होता है कि मतलब टू द पॉइंट बात करो, वो भी बिजी होंगे। लास्टली उन्होंने तो गाना नहीं गाया, उन्होंने कहा कि वो नहीं गाते, लेकिन आपने कभी गाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई शेर, कोई एक शेर, कोई ऐसी बात जो आपने एक्सप्रेस ना की हो अली के लिए, वो आप एक्सप्रेस करें अगर? हाँ नहीं, मैं एक्सप्रेसिव हूँ बहुत। एक्सप्रेसिव है जी, मैं एक्सप्रेसिव हूँ। तो वो एक्सप्रेस आप कर ही नहीं रही? आज कुछ कहे ना उन्हें जाते जाते यहाँ से शो से? कोई एक लाइन कह दे, शेर नहीं तो कुछ कह दे। अली के लिए सारी लाइंस हैं, ओए, कहे ना, कहे ना। ऑब्वियसली ही इज द मैन। He is the तो man. फिर अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे बाप है? बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। Oh, yes. अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे जी, इसी Thank you, तरह जी, प्यार में thank सलामत you. रखे। 18 साल एंड स्टिल काउंटिंग, माशाल्लाह, बहुत खुश रहिए। इंशाल्लाह, thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, बात Same here, करके। same here.